بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آہستہ سے دکان کے آگے لگا پردہ سرکایا اور دکان کے اندر چلی گئی۔ میرے ہاتھ میں لالٹین تھی جس کی وجہ سے اندر کچھ روشنی ہو گئی تھی، کیونکہ رات کا وقت تھا اور ہر طرف اندھیرا چھا چکا تھا۔ روزانہ رات کے وقت ابو کی چھوٹی سی کرائے کی دکان میں آتی تھی تاکہ وہاں کی صفائی کر دیا کروں اور جو بے ترتیب چیزیں پڑی ہوں ان کو صحیح جگہ پر رکھ دیا کروں۔ مرمت کے لیے جوتوں کو ان کی جگہ پر ہی رکھ رہی تھی کہ اچانک سے نظر ایک جوتے کے جوڑے پر پڑ گئی جو کہ مجھے کچھ عجیب اور غیر معمولی لگے تھے۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا کپڑا ایک طرف رکھا اور ان جوتوں کے پاس گئی جو کہ ایک کونے میں پڑے ہوئے تھے۔ قریب ہو کر دیکھا تو وہ کسی آدمی کے جوتے تھے، لیکن ان کا ناپ بہت ہی بڑا تھا۔ میں نے لالٹین ان کی طرف کی تو معلوم ہوا کہ وہ جوتے صرف رنگ کے لیے تھے اور ان کے اوپر ایک کالا سیاہ پتھر لگا ہوا تھا جو کہ مجھے پہلی نظر میں کچھ بہت پر اسرار لگا تھا۔ میں نے اس عجیب سے پتھر کو پہلی بار دیکھا تھا۔ میں ہمیشہ سے ہی جب بھی کوئی جوتا جو کہ ابا کے پاس مرمت کے لیے آتا، اگر مجھے پسند ہوتا تو ایک مرتبہ اس کو پہن کر ضرور دیکھتی۔ اس عجیب سے جوتے کو دیکھ کر آہستہ سے اندر کو پیروں کے پاس رکھا اور پہن کے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ جوتے میرے ناپ سے بہت بڑے تھے، اس لیے مجھے معلوم تھا کہ میرے پاؤں میں ہرگز نہ آئیں گے، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ جوتے پہنتے ہی میرے پاؤں میں ایک دم پورے آ گئے تھے۔ میں آنکھیں پھاڑے یہ دیکھنے لگی تھی کہ یہ کیسے ممکن تھا۔ مجھے وہ جوتے کافی پر اسرار لگے۔ فوراً سے ان جوتوں کو اتارنے ہی لگی تھی کہ اچانک سے دکان کے باہر لگا پردہ تیز ہوا سے لہرانے لگا تھا۔ وہ ہوا اس قدر تیز تھی کہ فضا میں اچانک ہی ایک عجیب سا شور سنائی دینے لگا تھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے وہ جوتے اتارے اور ان کو ان کی جگہ پر رکھ کر دکان سے باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ تیز قسم کی طوفانی ہوا سے ہاتھ میں پکڑی لالٹین بجھ گئی۔ ہر طرف مکمل اندھیرا چھا گیا تھا۔ باہر باہر گپ اندھیرے میں دل عجیب سے انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ یہ ایک دم سے موسم کیسے خراب ہو گیا تھا۔ اپنی چادر کو مضبوطی سے پکڑ کر گھر کی جانب روانہ ہوئی تھی۔ چلتے چلتے مجھے اس سناٹے میں کسی کی آہٹ اور قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ میرا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا تھا۔ اپنے قدموں کی رفتار میں بڑھا چکی تھی۔ گاؤں میں شام کے وقت ہی چونکہ سب لوگ اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے تو میں آرام سے اس وقت دکان میں آ جاتی تھی، لیکن آج اچانک سے سب کچھ عجیب سا ہونے لگا تھا۔ اب اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس کر کے بے تحاشا خوف آنے لگا تھا۔ کہیں یہ گاؤں کے وہ اوباش لڑکے تو نہیں تھے جن سے اکثر بہت سے لوگوں کو شکایت تھی۔ ابھی اسی جلدی میں تھی کہ اچانک سے میرے سر کے اوپر ہی کچھ چمگادڑیں آ کر تیز آواز میں چیخنے لگی تھیں۔ ایک دم سے اپنے سر سے کچھ ہی فاصلے پر چمگادڑوں کو دیکھ کر میرے منہ سے چیخ نکل گئی تھی، جس کو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر دبایا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری چیخ سن کر آس پاس موجود گھروں اور جھگیوں میں سے لوگ جاگ کر باہر آ جائیں۔ اپنا تماشا کسی کے سامنے نہ لگانا چاہتی تھی، اسی وجہ سے کوئی آواز پیدا نہ کی تھی، مگر وہ خوفناک چمگادڑیں مسلسل تیز آواز میں چلا رہی تھیں جو میرے خوف میں اضافہ کیے جا رہی تھیں۔ ان چمگادڑوں سے بچاؤ کے لیے ادھر ادھر نظر گھما کر کچھ ڈھونڈ رہی تھی تاکہ ان کا دھیان بھٹکا سکوں۔ اچانک سے ایک پتھر اپنے پاؤں کے قریب محسوس ہوا تو فوراً اٹھا کر زور سے ان کا نشانہ لینا چاہا، لیکن وہ ایک دم سے ہی دور ہو گئی تھی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں پوری قوت سے بھاگنے لگی تھی۔ میرا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا تھا، ٹانگیں کانپنے لگی تھیں۔ بار بار پیچھے مڑ کر ان چمگادڑوں کو خوف سے دیکھتی تو ان کو اب اپنا پیچھا نہ کرتا دیکھ کر کچھ سکون ہوا، لیکن اپنی رفتار کم نہ کی تھی۔ میری کوشش تھی کہ جلد ہی گھر پہنچ جاؤں۔ آخرکار کچھ دیر بعد گھر آیا تو اللہ کا شکر ادا کرتی اندر گھس گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں خوف اور دہشت سے حال برا ہو گیا تھا۔ چہرہ پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ مجھے اب بھی ایسا لگ رہا تھا کہ کسی کا احساس میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میرا نام زارا ہے، اپنے ابو کی اکلوتی اولاد تھی۔ امی کی بچپن ہی میں وفات ہو جانے کی وجہ سے ابو نے مجھ پر زیادہ روک ٹوک نہ کی تھی۔ میں قدرتی طور پر ایک شرارتی بچی تھی، بد شوق اور چنچل حرکتیں کر کے اپنے ابو کو خوش رکھتی تھی، ورنہ وہ امی کی وفات کے بعد بہت خاموش ہو کر رہ گئے تھے۔
मेरे अब्बू की किराए की एक छोटी मोची की छोटी सी झुग्गी नुमा दुकान थी, जिसका किराया वो बहुत ही मुश्किल से अदा करते थे। हम एक बहुत ही छोटे से कच्चे मकान में रहते थे। गांव में अब्बू की वाहिद मोची की दुकान थी, जहां हर तरह के लोग अपने जूतों की मुरम्मत करवाने आया करते थे। बचपन में मैं अब्बू के साथ उनकी दुकान पर जाया करती थी, लेकिन जब से शऊर की मंजिल पर कदम रखा था तो दुकान पर जाना कम ही होता था। रात के वक्त जब हर कोई सो जाता था तो मैं चादर लेकर अब्बू की दुकान साफ करने जाती थी, ताकि अगले दिन अब्बू को कोई तकलीफ ना हो। मुझे लोगों के नए जूते देखने और पहनने का शौक था, जो कि मैं रात के वक्त पूरा किया करती थी। इसी तरह एक रात मैं जब उसी तरह दुकान में मौजूद थी तो निगाह एक बहुत ही अजीब से जूतों पर पड़ी थी, जिनको इश्तियाक में पहनते ही मेरे साथ बहुत ही खौफनाक वाकयात होने लगे थे, जिन्होंने मेरी जिंदगी को बहुत ही भयानक बना कर रख दिया था। न जाने वो किसके जूते थे, जो कि दिखने में भी बहुत अजीब और पुरस्कार थे, जबकि उनको पहनने के बाद मेरी जिंदगी में खौफनाक और गैर मामूली असरात लाने का बायस बने थे। मैं वहां दुकान से डरते डरते जल्दी से घर पहुंची थी और अच्छे से दरवाजे की चिटखनी चढ़ाई थी। घर अंदर से खुला था। सामने ही चारपाई बिछी हुई थी जिस पर अब्बू सो रहे थे। मैं भी धड़कते दिल के साथ एक तरफ बने छोटे से अपने कमरे में चली गई थी। कमरे में आकर सुख का सांस लिया था। खौफ इस कदर हावी था कि चादर एक तरफ रखते एक ही जिस्म में जमीन पर बिछे बिस्तर पर लेट गई थी। आयतल कुर्सी पढ़ते हुए सोने की कोशिश करने लगी थी। कुछ ही देर में नींद मुझ पर हावी हो गई थी। अगले रोज मेरी आंख अब्बू के उठाने पर खुली थी। वो काम पर जाने वाले थे। मैं एक झटके से उठी और जल्दी जल्दी अब्बू के लिए नाश्ता तैयार करने लगी थी। बाहर सहन में ही जमीन पर चूल्हा रखा हुआ था। अब्बू को रोटी बनाकर दी तो देखा कि मेरे लिए नाश्ता बनाने के लिए आटा न था। मैंने अब्बू पर जाहिर ना होने दिया था। अपने अब्बू को इसी तरह हंसते मुस्कुराते खुदा हाफिज कहकर अंदर आ गई। घर में राशन बिल्कुल खत्म हो चुका था, लेकिन आजकल अब्बू बहुत परेशान थे क्योंकि काम ज्यादा न मिल रहा था। मैंने सोच लिया था कि जरूर अब कोई नौकरी ढूंढनी होगी ताकि कुछ गुजारा हो सके। आसपास किसी सहेली से कहकर पता करवाना शुरू कर दिया था कि अगर उनको किसी मुलाजिमा की जरूरत थी तो मैं काम करना चाहती हूँ। मेरी सहेली ने कुछ वक्त मांगा था। मैं सहन में बिछी चारपाई पर आकर बैठ गई थी। भूख तो लग रही थी क्योंकि कल से कुछ भी न खाया था, लेकिन कुछ भी खाने को ना होने की वजह से सब्र से काम लिया। मैंने सहन में बहुत से सूखे पत्ते गिरे हुए देखे, जो कि घर में लगे एक बहुत बड़े दरख्त पर से झड़े हुए थे। यकदम एक जगह से उठी और झाड़ू से सफाई करने का इरादा किया। सारा सहन झाड़ू लगाकर साफ किया। झाड़ू को उसकी जगह पर रख कर आ रही थी कि अचानक से तेज हवा चलने लगी थी। दरख्त की टहनियां और पत्ते हवा के तेज चलने की वजह से लहराने लगे थे। मैं हैरत से ये सब देखने लगी थी कि अभी सारी सफाई की थी, अब एकदम से इतनी तेज हवा कैसे चलने लगी। सारा सहन एक बार फिर से पत्तों के ढेर से भर गया था। मैं एक तरफ चारपाई पर बैठ गई। भी कुछ ही देर गुजरी थी कि मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे किसी ने मेरी चारपाई को थोड़ा सा अपनी जगह से हिलाया हो। मुझे ये पहले तो अपना वहम लगा था, लेकिन जब दोबारा से एक झटका लगा तो एकदम अपनी जगह से उठी। दिल अचानक से तेजी से धड़कने लगा था। मैं वहां से उठकर अंदर आ गई थी, लेकिन दिन के वक्त बंद कमरे में बैठने से घुटन होने लगती थी। मैंने अपनी सहेली की तरफ जाने का सोचा, क्योंकि उससे मिले काफी वक्त हो गया था। ऊपर से उससे मुलाजमत के सिलसिले में भी बात करनी थी। मैंने चादर ओढ़ी और उसके घर की जानिब रवाना हो गई थी। उसका घर हमारे घर से कुछ फासले पर था। उसके घर पहुंची तो पहले ही दस्तक पर उसने इतनी जल्दी दरवाजा खोला जैसे वो मेरे ही इंतजार में हो। मुझे कुछ अजीब तो लगा, लेकिन फिर सर झटक कर अंदर चली गई। कुछ देर उसी के साथ बातें करने के बाद वो अंदर बावर्ची खाने में शरबत लेने चली गई थी। मैं इधर ही बैठकर उसका इंतजार करने लगी थी। अचानक से बाहर कुछ खटकने की आवाज आई तो मैं चौकन्ना होकर बैठ गई। मुझे लगा कि उसकी अम्मी होंगी, जो कि करीब ही एक घर में सफाई का काम करती थी। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा तब हुई जब बाहर की जानिब से अपनी सहेली को खुद अंदर आते हुए देखा। एकदम अपनी जगह से खड़ी हुई और आंखें फाड़े कभी उसको देखती तो कभी बावर्ची खाने को, जहां पर अभी कुछ देर पहले ही मेरी सहेली शरबत मेरे लिए बनाने के लिए गई थी। अगर मेरी सहेली बाहर से अंदर आई थी तो मैं किसके साथ इतनी देर से बातें करने में मसरूफ थी। मैं खौफ के साथ अपनी सहेली को देखने लगी थी।
जो खुद मुझे अपने घर देखकर हैरान थी कि मैं अंदर कैसे आ गई थी। मैं डरते डरते उसके पास गई और उससे पूछा कि तुम यहाँ कैसे। वो नासमझी से मुझे देखने लगी। फिर उसने खुद ही मुझे खामोश देखकर बोलना शुरू किया कि वो पास ही किसी काम से गई हुई थी। खौफ से कांपते हुए बावर्ची खाने की जानिब इशारा किया कि वहां पर कोई है। वो मेरे कहने पर अपने किचन में गई तो किसी को भी मौजूद न पाकर मेरे पास आई। जब मैंने उसके मुंह से सुना कि अंदर तो कोई मौजूद नहीं है, तो मेरा चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया था। मुझ पर डर के मारे कपकपी तारी हो गई थी। तो कुछ बोला ना जा रहा था। अचानक से ऐसा अजीब सदमा लगा कि जहन माफ हो गया था। मैंने कुछ समझ ना आने पर नफी में सर हिलाया और उसको फिर कभी मिलने का कहकर फौरन वहां से भागी थी। सब आखिर क्या हो रहा था। मैं घर आ गई थी। अपनी सहेली से अगले रोज उस वाक़े का जिक्र किया तो कुछ देर तो वो भी सुन बैठी रही। फिर उसने मुझे जो कहा उसको सुनकर पहले तो मैं साकत हो गई थी, लेकिन फिर उसके समझाने पर कुछ देर बाद अपने आप को संभाला। उसका कहना था कि इस गांव में सालों से जिन्नात आबाद हैं। वो भी इन्हीं की तरह इंसानी रूप में ही उनके बीच में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन कोई आज तक ये मालूम न कर पाया था कि वो कहाँ रहते हैं। कुछ लोग अक्सर रात के वक्त गांव के करीब ही मौजूद जंगलात में पुरस्रार आहटें महसूस कर चुके हैं। उन्होंने ही ये बात सब लोगों तक पहुंचाई हुई है। वो लोग ऐसे तो इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान जबरदस्ती उनको या फिर उनसे मुंसलिक किसी चीज के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, तो फिर ये जिन्नात इंसानों को खौफजदा करके उनकी जिंदगी में बहुत से भयानक वाकयात लाते हैं। फिर उनसे जान बहुत ही मुश्किलों से छूटती है। तुमने जो मेरे रूप में किसी को देखा था जिसने तुम्हारे साथ बात की थी, वो मैं हरगिज न थी, बल्कि कोई पुरस्रार मखलूक थी जिसने अपनी गैर मामूली ताकतों से अपना रूप बदल लिया था। मैंने बहुत मुश्किलों से अपने आप को संभाला था। मैं सोचने लगी थी कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया था जो मेरे साथ ये अजीब खौफनाक से वाकयात होने लगे थे। अचानक से जहन में एक झमाका सा हुआ था। वो लाल सुर्ख पुरस्रार जूते जो कि लंबे नाप के होने के बावजूद मेरे पहनते ही पाँव में बिल्कुल बराबर आ गए थे। उस रात से ही मेरे साथ कुछ न कुछ खौफनाक हुआ जा रहा था। मैंने अब्बू से इस सिलसिले में बात करने का सोचा कि आखिर उनकी दुकान में वो जूते कहाँ से आए थे। अब मैंने रात का इंतजार करना था ताकि अब्बू के आते ही उनसे पूछ सकूं। शाम होते ही अब्बू घर आए तो उनके हाथ में कुछ आटा था और कुछ खाने का सामान था। मैंने उनके हाथ से वो सब लिया और जाकर जल्दी से खाना तैयार किया। खाने के बाद अब्बू से मौका देखकर उनकी दुकान में मौजूद उन लाल सुर्ख पुरस्रार जूतों का जिक्र किया तो अब्बू एकदम से खामोश हो गए थे। उनके चेहरे पर अचानक से एक साया सा लहराया। मैंने अब्बू के चेहरे पर वाज़ेह परेशानी और इज़्तिराब देखा। ऐसा लगा कि वो एकदम से खौफजदा हो गए हों। मैं समझ ना पाई कि ऐसा क्यों था। हाथ हिलाकर उनको मतवज्जे किया तो एकदम वो चौंक से गए। उन्होंने घबराहट में मुझसे पूछा कि तुमने वो जूते कहाँ से देखे। मैंने उनको बताया था कि रात में उनकी दुकान में एक कोने में पड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि उनको हाथ ना लगाना क्योंकि वो किसी के कीमती जूते थे जो कि उन जूतों के मालिक ने बहुत ही चमड़े से बनवाए थे। वो चमड़ा यहाँ पर मुयस्सर न था। मैंने अब्बू को नासमझी से देखा। डर कर उनसे मजीद पूछा कि ये जूते आपके पास क्यों लाए गए थे। तो उन्होंने कहा कि उन जूतों पर जो पत्थर लगा था उसके नीचे एक खास किस्म का मैदा लगाकर उसको चिपकाया जाता है। मैं वो मैदा जंगलात से लेकर आया था जो एक मखसूस दरख्त के पत्तों से हासिल की जाती है। अगर कोई इंसान जिसका नाप उन जूतों के बराबर ना हो तो वो पत्थर इस जूते से अलग हो जाता है। मैं अब्बू की बातें सुनकर दंग रह गई थी क्योंकि वो जूते वाकई मेरे पाँव में पहनते ही खुद ब खुद छोटे हो गए थे। इसका मतलब था कि वो पत्थर फिर से जुदा हो गया होगा। मैंने खौफ से कपकपाते हुए अपने चेहरे पर आया पसीना साफ किया। अब्बू को मैंने ये नहीं बताया था कि वो जूते मैं एक मर्तबा पहन चुकी थी। अब मुझे खुद ही कल दुकान पे जाके देखना होगा कि उसका पत्थर जूते में था या नहीं। फिर खामोशी से मैंने उठकर बर्तन समेटे और कमरे में आ गई थी। रात देर तक मैं सोच विचार करने में ही लगी थी। काफी देर से जाकर मेरी आंख लगी थी। अगला दिन तुलू हुआ तो मैं हस्ब मामूल उठी और नाश्ता तैयार करके अब्बू को बुलाया। हमने मिलकर नाश्ता किया। इसके बाद अब्बू दुकान पर चले गए थे। अभी घर की सफाई कर ही रही थी कि कुछ ही देर में मेरी सहेली खुशी खुशी घर में दाखिल हुई थी। मैं नासमझी से उसकी खुशी की वजह पूछने लगी थी कि उसने मुझे हाथों से पकड़कर गोल गोल घुमाया
मेरा सर अचानक घूमने की वजह से घूम कर रह गया था। कुछ देर बाद उसने कहा कि तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है। उसने कहा कि एक घर में उन लोगों को एक मुलाजिमा की ज़रूरत है जो कि उनके मुख्तलिफ काम करे। मैंने बेयकीनी की कैफियत में उसकी बात सुनी थी। उसने मुझे कहा था कि हफ्ते में 5 दिन बस मुझे वहाँ काम करना होगा, फिर बाकी के 2 दिन वो लोग घर पर नहीं होते बल्कि कहीं ज़रूरी काम से जाते थे। उनकी शर्त थी कि 5 दिन मुझे मुसलसल वहाँ पर ही रहना होगा, बाकी 2 दिन मैं अपने घर आ जाया करूँगी। मैं उधर ही रहने का सुनकर थोड़ी सी परेशान हो गई थी कि मेरे अब्बू का क्या बनेगा। उनको अकेला छोड़कर जाने का सोचकर इज़्तिराब की कैफियत में थी, लेकिन ये मुलाजमत भी ज़रूरी थी क्योंकि हमें एक वक्त का खाना बहुत मुश्किल से नसीब होता था। क्योंकि अब्बू की जो थोड़ी बहुत कमाई होती थी वो सब किराए अदा करने में चली जाती। मैंने अब्बू से जब उस नौकरी का जिक्र किया तो वो मान गए थे क्योंकि घर के हालात दिन ब दिन खराब हुए जा रहे थे। मैंने अपने एक बस्ते में कुछ कपड़े रखे। मेरी सहेली ने मुझे बताया कि उस घर में एक लड़का रहता है और उसकी दादी रहती है, जिनकी देखभाल करने के लिए मुझे वहाँ का काम मिला था। वो लोग मेरी सहेली के मुताबिक काफ़ी खामोश तबीयत थे, ज़्यादा बात करना पसंद न करते थे। मुझे अपने शौक और चंचल मिजाज को एक तरफ रखकर संजीदगी के साथ काम करना होगा। वो घर हमारे घर से ज़रा हटकर पिछली तरफ जंगलात के करीब था। मैं सुबह सुबह ही अब्बू से मिलकर अपनी सहेली के बताए गए पते पर रवाना हो गई थी। रास्ता काफ़ी सुनसान था क्योंकि आबादी से एक तरफ जंगलात की जानिब था। मैं आयतल कुर्सी का विद करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। रास्ते में अचानक से चलते हुए ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे आ रहा हो। मैंने एकदम पीछे मुड़कर देखा तो कोई मौजूद न था। सर झटक कर आगे की जानिब चलने लगी थी। कुछ देर बाद दोबारा से किसी के कदमों की आहट महसूस हुई तो रुक कर पीछे मुड़ के देखा तो एक काले रंग की बिल्ली खड़ी थी जो अपनी सुर्ख आंखों के साथ मेरे पीछे ही आ रही थी। मैंने खौफ से आगे बढ़ना शुरू किया ताकि जल्दी से रास्ता गुजर जाए। मुझे अपने पीछे पत्तों की सरसराहट महसूस हो रही थी जिससे मालूम हो रहा था कि वो बिल्ली मेरे पीछे आ रही थी। इसी तरह काफी तेजी से चलते हुए बिलाखिर रास्ता गुजर ही गया और एक वीरान सी जगह पर पहुंचकर मुझे एक घर दिखाई दिया था। मैंने बाहर से उस घर को देखा तो वो सारा सब्जे से ढका हुआ था। इसके इर्द गिर्द पौधे ही पौधे थे। मैंने झुरझुरी लेते हुए अंदर कदम रखा। दाखिली दरवाजा बंद था। मैंने हल्की सी दस्तक दी तो कोई जवाब ना आया था। कुछ देर बाद दोबारा वही अमल दोहराया तो कोई ना खोलने आया। मैं समझी कि शायद घर में कोई मौजूद न था। कुछ देर उधर दहलीज पर ही बैठने लगी थी क्योंकि घर वापस जाने का सवाल ही पैदा ना होता था। अचानक से दरवाजा खुलने की आवाज पर एकदम उछलकर पीछे मुड़ी तो देखा कि खुला हुआ था, लेकिन कोई मौजूद नहीं था। किसी के कदमों की आहट भी महसूस ना हुई थी। मुझे समझ ना आई कि दरवाजा किसने खोला था। लरजती टांगों के साथ घर के अंदर दाखिल हुई तो सहन में कोई दिखाई न दिया था। मैंने इधर उधर देखा, गोया किसी को तलाश करना चाहा था। अकेले सुनसान घर में एकदम से खौफ सा आया था। अचानक से टिक टिक की आवाज पर पलटी तो देखा कि एक बुजुर्ग खातून लाठी पकड़े आ रही थी। मुझे संजीदगी से देखते हुए चंद कदमों के फासले पर आकर रुक गई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि कौन हो तुम लड़की। उनकी करख्त सी आवाज सुनकर एकदम सांस रोक गई थी क्योंकि उनकी आवाज में एक अजीब सी दहशत थी। मैंने गला खंगारते हुए उनको बताया कि यहाँ पर काम करने आई हूँ क्योंकि उनको जरूरत थी। वो कुछ देर खामोशी से मुझे देखने लगी, फिर असबात में सर हिलाकर कहा कि शाम होने से पहले खाना बनाना होगा। इधर करीब ही खेत से मुझे सब्जी लेकर आनी होगी क्योंकि फिर अंधेरे में जाना मेरे लिए मुश्किल होगा। उनके मुताबिक वो खेत उनके आबाओ अजदाद के थे। मैंने अपना बस्ता एक तरफ कोने में रखा और घर से बाहर खेतों की जानिब गई। दोपहर का वक्त हो गया था, लेकिन यहाँ पर पौधों और सब्जी की वजह से कुछ कुछ अंधेरा सा छाया हुआ था। मैं मोहतात होकर आगे बढ़ने लगी थी। कुछ ही दूर आगे खेत दिखाई देने लगे जिनमें मुख्तलिफ इकसाम की सब्जियां थीं। मैं अपने साथ एक टोकरी लेकर आई थी। खेतों में चलते हुए मैंने कुछ जगहों पर ड्राउने पुतले खड़े देखे थे जो कि परिंदों से खेतों को महफूज रखने के लिए बनाए गए थे। वो काफी खौफनाक थे। मैंने टोकरी को एक पुतले के करीब रखा और कुछ सब्जियां लेने गई थी। वापस आई तो टोकरी देखकर हैरान रह गई थी क्योंकि उसमें से सब्जियां गायब थीं। मैं खौफजदा होकर यहाँ वहां देखने लगी कि सब्जियां कौन लेकर गया था। क्या कोई परिंदा या जानवर था? लेकिन मुझे तो किसी की भी आहट अपने पीछे महसूस ना हुई थी। तो एकदम से कौन बगैर आवाज किए आया था?
कुछ समझ न आने पर दोबारा खेतों की तरफ गई और टोकरी लेकर जब मैं उससे मजीद सब्जियां इकट्ठी करके लाई तो खौफ से मेरा चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, क्योंकि वो खौफनाक पुतला उस जगह पर मौजूद न था बल्कि दूसरे किनारे पर था। मैं खौफ से देखने लगी थी कि ऐसे कैसे अपनी जगह से हिल गया था। डरते डरते उस पुतले को देखा तो हाथ से वो सब्जी की टोकरी छूट कर गिर गई थी, क्योंकि उस खौफनाक पुतले की आंखें देखते ही देखते सुर्ख हो गई थी। ऐसे लगा जैसे उसमें कोई पुरस्कार ताकत थी जो कि उन बेजान पुत्तों को अपनी जगह से हटा चुकी थी। मैंने डरते डरते जल्दी से उस टोकरी में वो गिरी हुई सब्जियां वापस डाली और एक ही जिस्त में वहां से दौड़ लगा दी थी। बगैर पीछे देखे अंधाधुंध भागती जा रही थी, क्योंकि मुझे खौफ था कि वो पुरस्कार मखलूक मेरे पीछे ना आ जाए। घर आकर अंदर कदम रखा तो खौफ से मेरी सांस फूल चुकी थी। सहन में उस वक्त कोई भी मौजूद न था। मैंने एक तरफ बने बावर्ची खाने का रुख किया ताकि सब्जियां काट कर खाना बनाना शुरू कर सकूं। ये घर चूंकि बहुत वीराने में था, इसलिए हर तरफ खामोशी का राज था। बर्तनों की आवाज एक अजीब सा शोर पैदा कर रही थी। मैं पीछे मटके से पानी लेने के लिए मुड़ी ही थी कि ऐसा लगा दिल उछल कर हलक में आ गया हो, क्योंकि मेरे पीछे ही वो औरत खड़ी हुई थी जिन्होंने कहा था कि उनको सब दादी कहकर पुकारते हैं। मैं समझ ही न पाई कि वो कैसे अचानक से मेरे पीछे आ गई थी। अभी तक तो बावर्ची खाना खाली था, मेरे अलावा किसी का नामो निशान न था, तो वो कैसे इधर आ गई? उन्होंने मुझसे अपनी भारी आवाज में पूछा कि सब्जियां मिल गई थी। मैंने डरते डरते इस बात में सर हिलाया। उनकी काली स्याह पुरस्कार आंखों से मुझे खौफ आ रहा था। वो अपनी लाठी जमीन पर मारते हुए दोबारा से बाहर चली गई थी। उनके जाने के बाद मैंने सुख का सांस लिया था। कुछ ही देर में खाना तैयार हुआ तो कमरे के अंदर मैं उनको खाना देकर आई। उन्होंने मुझे भी खाना खा लेने का कहा था। इसी तरह सब कामों में शाम हो गई थी। मैं बर्तन वगैरह धोकर दादी के बताए हुए कमरे में आ गई थी। ये कमरा बाहर की तरफ से खुला हुआ था। मुझे काफी अजीब लगा था, क्योंकि बाहर से पौधे वगैरह और दरख्त दिखाई दे रहे थे जो रात को अंधेरे में अजीब सा खौफ मेरे दिल में डाल रहे थे। मैंने जमीन पर अपना बिस्तर बिछाया और सोने के लिए लेट गई थी। नजरें मेरी बाहर के पौधों की तरफ ही थी। एकदम से कुछ गैर मामूली दिखाई देने पर अपनी जगह से उठी। उस तरफ पौधों के बीच में कुछ रंग के दो नुक्ते दिखाई दिए थे। मैं सर पे दुपट्टा दुरुस्त करते आगे आई तो देखा कि एक दरख्त के ऊपर बिल्ली बैठी हुई थी। मैं गौर करने पर हैरान रह गई, क्योंकि यह वही बिल्ली थी जो यहाँ आते वक्त मेरे पीछे ही थी। उसकी सुर्ख आंखों ने मुझे उस वक्त रात के अंधेरे में मजीद खौफजदा कर दिया था। मैंने इधर उधर देखा तो करीब ही से उसको शू शू की आवाज से करके निकाल कर भगाना चाहा, लेकिन वो अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिली थी। अजीब सी पुरस्कार सी बिल्ली थी, ना तो हिलजुल रही थी और ना ही अपनी नजरें मुझसे हटा रही थी। मैंने आयतल कुर्सी पढ़कर इर्द गिर्द फूंकी और सब अल्लाह पर छोड़कर सोने के लिए लेट गई थी। अगले दिन का आगाज हुआ तो मैंने दादी के लिए नाश्ता वगैरह तैयार किया था। मुझे हैरत थी कि वो लड़का कहाँ पर था जो कि दादी के बकौल उसका पोता था। क्या यहाँ पर दादी अकेली ही रहा करती थी? लेकिन उनसे पूछने की हिम्मत न थी। नाश्ते वगैरह से फारिग होने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आज घर की सफाई करनी है। मैंने अस्पात में सर हिलाया और सफाई में लग गई। ये घर भी इतना बड़ा न था, बस बाहर चमन काफी वसी था। अंदर बस 3 ही कमरे थे, जिनमें से एक कमरा बंद ही था। दादी के मुताबिक ये कमरा उनके पोते का था। मैंने सहन में दीवारों से जाले उतारते वक्त एक तस्वीर लगी देखी, जिसमें दादी के साथ एक आदमी खड़ा था। शायद वो उनके शौहर थे। अभी वो तस्वीर देख ही रही थी कि अचानक एक चीज पर आके नजर साकित हो गई थी। उस आदमी ने जो जूते पहन रखे थे वो कोई और नहीं बल्कि वही सुर्ख रंग के जूते थे जो कि मेरे अब्बू की दुकान पर पड़े हुए थे। मैं हैरान होकर यकटक उन जूतों को ही देखे जा रही थी। इसका मतलब था कि इस घर से ही कोई ये जूते लेकर अब्बू की दुकान पर लेकर आया था। लेकिन कुछ मुख्तलिफ था इन जूतों में। गौर करने पर मालूम हुआ कि इन सुर्ख जूतों के ऊपर लगा पत्थर सफेद था, जबकि दुकान में पड़े जूतों पर लगे पत्थर का रंग काला स्याह था। मुझे ये सब कुछ अजीब लगा था। अपने पीछे अचानक से वही करख्त आवाज आई कि ये क्या देख रही हो। मैं डर कर एकदम पलटी तो देखा कि दादी खड़ी हुई थी। उनकी नजरें उस तस्वीर पर ही टिकी हुई थी। मैंने कुछ न कहा, पर तस्वीर पर नजरें देखकर दादी समझ गई थी कि मैं क्या पूछना चाह रही थी। उन्होंने कहा कि ये उनके शौहर थे जो कि अब इस दुनिया में मौजूद न थे। मैंने उनकी बात खामोशी से सुनी और अपने काम में मसरूफ हो गई थी। मेरे दिमाग में मुसलसल वही जूतों की तस्वीर घूम रही थी। सर झटक कर अपने काम में मसरूफ हो गई थी।
काम करने के बाद दादी के कमरे में गई तो देखा कि वो नमाज पढ़ने में मसरूफ थी। मैं कुछ देर इधर ही खड़ी होकर उनका इंतजार करने लगी। वो नमाज पढ़ ही रही थी कि अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कुछ गर्मी सी हो गई हो। मुझे लगा शायद कमरा बंद होने की वजह से गर्मी हो गई हो, लेकिन जब देखा तो खिड़की खुली हुई थी। कुछ ही देर मजीद गुजरी थी कि कमरे में मौजूद गर्मी मजीद बढ़ने लगी थी। अब मेरे माथे पर गर्मी से पसीने के कतरे नमूदार होने लगे थे। दादी, जो कि नमाज पर ही बैठी हुई थी, बिल्कुल खामोशी से अपनी इबादत में मसरूफ थी। उनमें मुझे जरा भी हरकत होती महसूस न हुई थी, ऐसे जैसे उनको गर्मी का एहसास तक न हो रहा हो। मुझे अजीब लगा कि ये कैसे मुमकिन था कि मैं पसीने से शराबूर हो गई थी और वो आंखें बंद किए बगैर, कोई हरकत किए बगैर मसरूफ थी। मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला ताकि ताज़ा हवा आ सके। मैंने दरवाज़ा खोला कि एकदम ही तेज़ हवा का झोंका आया था। एकदम से हवा आ गई थी कि मुझे अपने कान में ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा नाम ज़ारा पुकारा हो। मैं एकदम खौफ से उछली और पीछे मुड़कर देखा। सरगोशी इतनी नज़दीक से आई थी कि मेरा दिल एकदम तेज़ी से धड़क उठा था। दादी ने कमरे में हवा का झोंका आते देखा तो आंखें खोलकर मुझे देखा। मैं उनकी आंखों में शदीद लाली देखकर खौफजदा हो गई थी। वो बहुत गुस्से में दिखाई दे रही थी। मैंने अपने चेहरे पर आया पसीना साफ किया। उन्होंने मुझे कहा कि तुमने ये दरवाज़ा क्यों खोला। उनकी भारी आवाज़ सुनकर मुझे एकदम अजीब सी वहशत हुई थी, क्योंकि वो आवाज़ काफ़ी बदली हुई लग रही थी। मैंने आहिस्ता से उनको कहा कि गर्मी की वजह से मेरा सांस बंद हो रहा था, इसलिए दरवाज़ा खोला था। उन्होंने कुछ भी न कहा और दोबारा से खामोश होकर बैठ गई थी। मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और अपने कमरे में आ गई थी। राहदारी से गुजरते हुए फिर से मेरे कान के अंदर एक पुरस्रार सरगोशी हुई। ऐसा लगा कोई अनजान मखलूक मेरा नाम पुकार रही हो। मैं डर से काम कर रह गई थी। सहन में दीवार पर लगी हुई तस्वीर जिसमें वो जूते दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब अचानक से वो जूते लाल रंग से काले हो गए थे। मेरा चेहरा खौफ से तारीक पड़ गया था। ये सब क्या हो रहा था? मैंने बहुत से लोगों से सुन रखा था कि काला रंग काले सायों की निशानी होता है। उन जूतों का रंग स्याह हो गया था। इसका मतलब था कि किसी ने कुछ तो ऐसा अमल किया था जिसकी वजह से ये रंग तब्दील हो गया था। मेरे दिल में अचानक से ख्याल आया कि अब्बू के किराए की दुकान में वो जूते जाकर देख कर आऊं ताकि उनके रंग का अंदाज़ा लगा सकूं। लेकिन पहले यहाँ पर एक मखसूस पेड़ से वो मैदा लेना था ताकि वो पत्थर जो उस जूते पर चिपका सकूं। दादी कमरे में ही थी तो मैं आहिस्ता से घर से निकली और कुछ आगे जाकर वो दरख्त तलाश करने लगी। थोड़े से फासले पर जाके वो दरख्त दिखाई दिया था। मैं दौड़कर उसकी तरफ गई और वो पत्ते तोड़ने लगी थी। अचानक से फिर से अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई तो लरसते हुए जल्दी से पत्ते तोड़े और घर की तरफ आ गई थी। पत्ते लाकर एहतियात से अपने बस्ते में रख लिए थे। कल वैसे भी मैंने अपने घर जाना था तो ये काम कर लूंगी। दादी ने कहा था कि कल उनका पोता उनको लेने आएगा। वो दोनों अपने किसी काम से जाने वाले थे। ये बात मैंने अपनी सहेली से सुन रखी थी कि ये दोनों दादी पोता हफ्ता इतवार कहीं जाते थे, जिसका किसी को कुछ मालूम ना होता था। मैं अगले रोज सुबह सवेरे अपने घर आ गई थी। अब्बू से इतने दिनों बाद मिलकर मेरी आंखें नम हो गई थी। उनके लिए अपने हाथों से खाना बनाया। फिर जब मिलकर एक साथ खाना खाया तो शाम होने तक मैं अपने कमरे में आ गई थी। अब्बू भी आराम से सो गए थे। जब अंधेरा छा गया था तो हस्बे मामूल मैंने चादर ओढ़ी और घर से बाहर निकली और दुकान पर जाने के लिए रवाना हो गई थी। मोहतात अंदाज में दुकान के अंदर दाखिल हुई तो हाथ में पकड़ी लालटेन एक तरफ रखी और वो जूते ढूंढने लगी थी, लेकिन मुझे उस कोने में वो जूते दिखाई न दिए थे। परेशान होती हर जगह छानबीन कर चुकी थी। मायूस होकर जाने ही लगी थी कि एक तरफ पड़ी लकड़ी की मेज के नीचे कुछ अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कि कोई आहट हुई हो। घबरा कर आगे आई और मेज के नीचे पड़ी कुछ रद्दी डब्बों को एक तरफ किया तो आंखें खुली की खुली रह गईं। सामने ही वो जूते पड़े हुए थे, लेकिन वो हैरत अंगेज तौर पर सुर्ख की बजाय स्याह हो चुके थे। मैं हाथ में थामे पत्ते जो मैं अपने साथ लेकर आई थी, अब्बू के बताए गए तरीके से उन पत्तों से वो मादा निकाला और उस पत्थर पर लगाकर उस जूते पर चिपका दिया था। वो काला पत्थर उन काले जूतों पर लग के चमक उठा था। ये जूते पुरस्रार थे। जरूर इनका कोई बहुत बड़ा राज था जो कि इंतहाई भयानक था। मैंने डरते डरते वो जूते उठाकर अपने साथ लिए बस्ते में रख लिए थे। कुछ ही देर में दोबारा से घर आ गई थी। 2 दिन गुजार के मुझे दोबारा से काम पर जाना था। अब मैंने इरादा किया था कि दादी से उन जूतों के मुतालिक पूछूंगी
क्योंकि अब्बू कुछ नहीं बता सके थे। घर आई तो अब्बू सो रहे थे। मैं खामोशी से बगैर आवाज पैदा किए अपने कमरे में आ गई। थकावट और नींद की वजह से मैं जल्द सो गई थी। अगला दिन भी इसी तरह गुजर गया था। मैं 2 दिन बाद आज वापस जा रही थी। उस घर में दाखिल होकर दादी के पास कमरे में गई तो वो अपनी इबादत में मसरूफ थी। मुझे हैरत हुई कि यह वक्त उनके आराम का था, तो वो इतनी देर तक कैसे बैठ गई थी। मैं एक तरफ बैठी इंतजार कर रही थी कि अचानक से कमरे का दर्जा हरारत बढ़ने लगा। गर्मी के एहसास ने कुछ ही देर में मुझे पसीने से शराबूर कर डाला था। आज दरवाजा खोलने की गलती किसी सूरत न कर सकती थी। मैं अपने साथ बस्ते में वो जूते लेकर आई थी। आखिरकार गर्मी बर्दाश्त करने की मेरी हद खत्म हुई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा जिस्म आग जैसी गर्मी की वजह से झुलस जाएगा। तो एकदम दादी ने अपनी आंखें खोली और उठकर बिस्तर पर बैठ गई थी। गर्मी अब आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद खत्म होती चली गई थी। उनका सबक पूरा हो गया था। मैंने दादी से डरते डरते पूछा कि इस कमरे में बेतहाशा गर्मी क्यों हो जाती है। दादी ने मुझे देखा, फिर अपने पास बैठने को कहा। मैं खामोशी से उनको देखने लगी, गोया उनके जवाब का इंतजार करने लगी थी। उन्होंने मुझे कहा कि वो ये सबक इस घर को और इसमें रहने वाले लोगों को कुछ काली ताकतों से शर से बचाने की खातिर पड़ती हैं, जो कि बहुत ही ताकतवर और ख़तरनाक हैं। उनकी दहशत से महफूज रखने के लिए अल्लाह का कलाम पढ़ना होता है, जिसके जोर की वजह से ये गर्मी की झुलसा देने वाली तपिश कमरे में जमा हो जाती है। ये गर्मी इस बात का सबूत होता है कि वो काली ताकतें यहीं कहीं मौजूद होती हैं। अल्लाह का कलाम पढ़ने के बाद वो इस घर से दूर हो जाती हैं। मैं ये हकीकत जानकर दंग रह गई थी। खौफ से चेहरा पीला पड़ गया था। दादी ने मेरे कांपते वजूद को देखा तो मेरे हाथों में अपने हाथ रखकर एक तरह की तसल्ली दी कि घबराओ नहीं, इस सबक के बाद वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। उनकी मौजूदगी भले महसूस होती है, लेकिन उनकी ताकत इस अमल के जरिए उससे वक्ती तौर पर छीन ली जाती है। मैं पूछना चाहती थी कि वो काली ताकतें क्यों इन सब के पीछे पड़ी हुई थी, और अब तो जब से वो अजीब से जूते पहने थे, मुझे भी डरा कर खौफजदा करना शुरू कर दिया था। इसका मतलब था कि उन काली ताकतों ने अपना साया उन जूतों पर भी किया हुआ था, जिसकी बदौलत वो स्याह हो चुके थे। मैंने दादी को अपने बस्ते से वो जूते निकाल कर बताया कि ये जूते बिल्कुल हूबहू उस बाहर दीवार पर लगी तस्वीर की तरह थे, लेकिन ये काले स्याह हो चुके थे। दादी पहले तो वो जूतों को देखती रही थी कुछ देर। मुझे ऐसा लगा कि उनकी आंखों में नमी आई हो, क्योंकि वो अपने साथ रखे रुमाल से आंखें पोंछ रही थी। उन्होंने आराम से वो जूते अपने हाथ में लिए और उन पर अपने हाथ फेरने लगी थी। मैं उनकी तरफ से जवाब की मुंतजिर थी। कुछ देर बाद उन्होंने खुद ही कहा कि ये जूते उनके शौहर के थे, जो कि उनकी वफात के बाद अब मेरे पोते को विरासत में मिले थे। लेकिन कुछ काली ताकतों ने इन जूतों पर अपना काला साया डाला था, जिसकी वजह से ये अपना असली रंग खोकर स्याह हो चुके थे। अब ये सब तभी ठीक होगा जब उस काले साए का खात्मा किया जाएगा, वरना ये इसी तरह मंडलाते रहेंगे। दादी की बातों ने मुझे मजीद खौफजदा कर दिया था, लेकिन मुझे अब भी कुछ समझ ना आ रहा था कि आखिर इस सब से उनको क्या फायदा होने वाला था। इन्हीं सोचों में गुम थी कि दादी ने मुझे कहा कि ये जूते तुम अपने पास संभाल कर रख लो, जब इनकी जरूरत होगी मैं तुमसे कह दूंगी। मैं नहीं रखना चाहती थी, लेकिन उनकी अगली बात ने मुझे हैरत के साथ साथ खौफ में भी मुब्तला कर दिया था। जब उन्होंने मुझसे कहा कि ये जूते वो मुझे इसलिए दे रही हैं क्योंकि वो मैं पहन चुकी थी, जिसकी वजह से वो काले साए मुझे डराने की कोशिश करते थे। मैं खौफजदा होकर उनको देखने लगी कि उनको कैसे पता लगा कि मैंने वो जूते पहने थे। मैंने तो आज तक किसी को ये नहीं बताया था, यहाँ तक कि अब्बू से भी छुपाया था। मैं खौफ से उनको देखने लगी थी कि कहीं दादी के पास भी तो कोई पुरस्कार कुव्वत नहीं थी जिससे उनको पता चल गया था। उन्होंने मुझे कहा कि इतना ज्यादा मत सोचो, जाओ जाकर कमरे में ये जूते संभाल लो और फिर खाने का इंतजाम करो। आज मेरा पोता भी यहाँ पर ही होगा। मैंने चौंक कर उनको देखा, क्योंकि आज तक दादी का पोता मेरे सामने ना आया था। मैंने सर झटक कर बावर्ची खाने का रुख किया था। आटा गूंद कर चूल्हा लगाने की कोशिश कर रही थी, जो कि लगने का नाम ही न ले रहा था। मुझे हैरत हो रही थी कि कोई मसला ना था, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा था। थक हार कर दादी को बताने के लिए जाने ही लगी थी कि अचानक पलटने पर एक जोरदार टक्कर किसी के वजूद से हुई थी, जिसके नतीजे में मैं जमीन बोस होने लगी थी कि बरवक्त सामने खड़े आदमी का बाजू बेख्तियारी में मैंने थामा था।
ایک लम्हे से भी कम वक्त के लिए बाजू थाम कर छोड़ दिया था, क्योंकि ऐसा महसूस हुआ जैसा मैंने किसी गर्म लोहे को हाथ लगा लिया हो। मैं सी करते हुए अपने हाथ को पीछे कर गई थी। सामने एकदम गौर किया तो मालूम हुआ कि एक नौजवान लड़का खड़ा हुआ था, जो कि यकटक महवियत के साथ मुझे देखे जा रहा था। मेरे गले में उस आदमी को अपने इतने पास खड़ा देखकर गिल्टी उभर कर मौदूम हो गई थी। एकदम से ख्याल आया था कि कहीं ये दादी का वो पोता तो नहीं जो कि आज ही आने वाला था। आहिस्ता से सलाम करके मैं एक तरफ होकर खड़ी हो गई। उसने भी सलाम का जवाब दिया और साथ ही मटके से पानी लेकर चला गया। मैं पीछे मुड़ी तो चूल्हा आग पकड़ चुका था। हैरत से एकदम पीछे देखा तो कोई न था। तो फिर ये चूल्हा किसने लगाया था? कहीं उस लड़के ने तो नहीं लगाया? लेकिन वो तो इस तरफ आया ही नहीं था। मुझे ये सारा घर आसेब ज़दा लगा था। खौफ की एक शदीद लहर पूरे जिस्म में दौड़ी थी। माथे पर आया पसीना साफ किया और अपना ध्यान खाने पकाने पर लगा दिया, जो कि भटक भटक कर उसी नौजवान की जानिब जा रहा था। जाने उसमें ऐसी कौन सी कशिश थी जिसकी वजह से मेरे जहन में उसकी तस्वीर चिपक कर रह गई थी। कुछ ही देर में खाना तैयार करके दादी के कमरे में ही लेकर गई थी, जहां वो दोनों दादी पोता बैठे बातें कर रहे थे। मुझे अंदर आता देखकर वो खामोश हो गए थे। मैं खाना रखकर जाने लगी थी कि दादी ने आज मुझे अपने साथ खाना खाने का हुक्म दिया, जिसकी वजह से मैं कुछ हिचकिचाहट का शिकार हुई। थोड़ा सा खाना खाने के बाद सारे बर्तन समेटे और फिर घर के कामों में लग गई थी। सहन की सफाई करते वक्त अचानक से एक काला साया दिखाई दिया था। मैं चौंक कर एकदम ही मतवज्जे हुई तो वो गायब था। मैं समझी कि शायद मेरा वहम हो, लेकिन ऐसा नहीं था। कुछ देर बाद वही काला साया दोबारा से एक कोने में दिखाई दिया, जिसने मुझे एकदम खौफजदा कर दिया था। मैंने डर कर वहां से भागना चाहा कि कंधे पर किसी हाथ को महसूस करके एकदम से चीख मारी थी। मेरी चीख इतनी तेज थी कि दादी भी अपने कमरे से उठकर बाहर आ गई थी। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर पूछा कि क्या हुआ है, क्यों इस तरह चिल्ला रही थी। मेरा चेहरा खौफ से सफेद पड़ चुका था। उस हाथ को अपने कंधे पर पड़े हुए वाज़े देखा और महसूस किया था, जो कि अब बिल्कुल गायब था। मैंने रोते रोते दादी को सब कुछ बताया कि जब से मैंने वो अजीब से जूते पहन के देखे थे, तो तब से ही जो कि मुसलसल मेरे पीछे साए की मानिंद होता है और मुझे खौफजदा करके रख दिया था। मैं ज़ारो कतार रोती जा रही थी। अब मजीद बर्दाश्त करने की मुझ में हिम्मत ना रही थी। मैं उस अजीब दहशत भरी जिंदगी से छुटकारा पाना चाहती थी। मैंने तो बस अपनी गुर्बत और फाकों से तंग आकर ये मुलाजमत शुरू की थी, लेकिन अब हर दिन मुझे अपना खौफ और दहशत के करीब जाता हुआ महसूस हो रहा था। दादी खामोशी से मेरी सारी बातें सुन रही थी। वो मुझे लेकर कमरे में आई थी। कुछ देर जबान से पढ़कर कुछ कमरे के चारों जानिब फूंका था। उसके बाद वो मुझे अपने साथ लेकर बिस्तर पर बैठी थी और मुझे कहा कि बेटा, मेरी एक बात आज ध्यान से सुनना। तुम्हें यह सब सुनकर खौफ आएगा, लेकिन ये एक हकीकत है जिसको तुम झुटला नहीं सकती हो। मैं उनकी बात मुकम्मल होने का इंतजार करने लगी थी। उन्होंने कहा कि जब से तुमने वो सुर्ख जूते पहने थे, तभी से तुम्हारे साथ भी वही काले साए जुड़ चुके थे, जो कि इस घर और घर वालों के साथ होते। वो जूते मेरे पोते के हैं, जो कि एक जिनजात शहजादा है। ये काली ताकतें उसके पीछे इस वजह से पड़ी हुई हैं ताकि उसके 18 साल के होने से पहले उसकी सारी ताकतों को अपने वश में कर लें और तमाम जिन्नात पर अपनी हुकूमत कर सके। ये जूते मेरे पोते ने तुम्हारे अब्बू को संभाल कर रखने के लिए दिए थे, ताकि उसके 18 साल के होने तक वो उनको उन काली ताकतों से बचा कर रखे। ये जूते उसके 18 के होने पर पहनने थे, जिससे वो जिन्नात के कबीले का सरदार बन जाता। मगर कुदरत का करना था कि वो तिलिस्माती जूते वक्त से पहले तुमने पहन लिए थे। अब वो काली ताकतें तुम्हें भी मेरे पोते की तरह ही नुकसान पहुंचाकर अपना मकसद हासिल करना चाहती हैं। तुम्हारे अब्बू बस इतना ही जानते थे कि वो जूते एक जिनजात शहजादे के हैं, जो कि उनके पास अमानत थी। बाकी उनको कुछ न बताया गया था। मैं अपने कमरे में रोज जो इबादत करती थी, वो भी एक हिफाजती हिसार बनाने की खातिर करती थी। लेकिन ये काली ताकतें चूंकि बहुत ताकतवर और जोरावर हैं, इसी वजह से वो अब तुम्हारी जिंदगी को मजीद भयानक करना चाहती हैं। मैं खौफ से कांपते हुए पूछने लगी कि इस सब का कोई हल तो होगा। उन्होंने अस्पात में सर हिलाया और कहा कि हल तो है, लेकिन तुम अगर राजी हो जाती हो तो। मैंने एकदम हामी भरी थी। मैं किसी भी सूरत में उस भयानक सांव से अपनी जिंदगी बचाना चाहती थी। उन्होंने कहा कि मुझे उनके पोते से शादी करनी होगी। एक मर्तबा हम एक मजबूत रिश्ते में बंध जाएंगे तो मेरे जिनजात शौहर की ताकतें इस कदर बढ़ जाएंगी कि वो उन काली ताकतों को जलाकर भस्म कर देगा। ये ताल्लुक हमें कायम करना होगा, तभी कुदरत की तरफ से इन
भयानक काले सायों से जान छूट सकती थी। मैंने उनकी बात सांस रोक के सुनी। मेरे पास मजीद कोई चारा न था। इस शादी के बगैर भी मेरी जिंदगी दिल दहला देने वाली हो चुकी थी। अब सब कुछ अल्लाह पर छोड़कर मैंने हामी भर ली थी। फिर अगले ही दिन दादी ने मेरा निकाह जिनजादे शहजादे से करवाने के सारे इंतजामात करवा लिए। कुदरत हम सब पर बिलाखिर मेहरबान हो गई थी। दादी का कहा सच साबित हो गया था। उन काली ताकतों को हमेशा के लिए मेरे जिनजात चौहर ने जलाकर भस्म कर दिया था। वो लाल जूते भी दोबारा से अपनी पूरी शान के साथ लाल सुर्ख हो गए थे। मैं भी अपने शौहर के साथ आसूदगी भरी जिंदगी गुजारने लगी थी। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।